alkene, so we have basically have to learn about only two different types of alkene, two isomers of it. Chain isomers and position isomers. Now, what is chain isomer? Chain isomer will differ in the size of parent chain or the length of parent chain. Right? They will have everything. The molecular formula will be same, but they differ in the parent chain length. Okay? The peptide differs in length of parent chain. What about position isomers? Everything will be same, even the chain will be same, but they differ in the position of halogen atom in the case of haloalkane. Differs in the position of halogen atom. Fine. चलिए, I hope you have written this down with me. अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा जरा. We are going to start with one carbon atom and then draw as many chain as possible. Then we are going to take the two carbon atoms and then draw as many carbon atom as possible. Then we are going to take four carbon, two carbon, three carbon, four carbon, five carbons. Okay, so we are going to see examples till five carbon atoms, and first of all we are going to make different chains, or in each chain we are going to identify the different position. First of all, what we will do, we will identify the different chains that we can make from a particular number of carbon atoms. Okay, so please can you tell me what are we going to do first? We are going to identify the different types of what? Tell me guys. नहीं आवाज आई है यार. डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? पहले क्या देखेंगे हम लोग? चेन आइसोमर पहले देखेंगे या फिर पोजीशन देखेंगे? क्या देखेंगे पहले? चेन. चेन. ठीक है ना? चेन. एंड फॉर ईच चेन वी आर गोइंग टू लुक एट different positions. ठीक है? Now see, we are going to do that, but ये तो eventually आपको भी आना चाहिए. So it is important to understand the sequence what we are going to do. Now when we have one carbon, देखिए एकदम starting से आपको बता रहे हैं. Hopefully you have written this. If you have not, then please let me know. ध्यान सुनिएगा. If I have only one carbon atom, in the case of don't write now, अभी सिर्फ सुनिएगा. Only one carbon atom. इसको तो बस ऐसे लिख सकते हैं ना. Is there any way of writing one carbon atom? No sir. No. If I have two, I'm not writing hydrogens and anything. ठीक है ना? We are just going to look at the carbon chain. That's it. When you have two carbon atoms, then C1 is attached to C2, or C2 is attached to C1. If I write it like this, are these two different? No. In both the case, if you look at the connectivity, yeah, please look at the connectivity. C1 is connected to C2, or C2 is connected to C1. Both of them, it means the same. Yes or no? Please tell me. Yes बताइए. sir. When I have three carbon atoms, तीन कार्बन में बस एक ही तो चेन बनेगा ऐसा. आप चाहे आप इसको ऐसा बना दीजिए, दो कार्बन और एक नीचे कर दीजिए. दिस इज ऑल्सो सेम थिंग. सीक्वेंस में ही सारी है. Connectivity is same. Yes or no? Please tell me. One carbon is attached to another, then to another. Makes sense? Yes or no? Please tell me. Yes sir. बोलिए तो. ठीक है, चलिए. Next, then you have four carbon atoms. By the way, तीन कार्बन को हम ऐसे दिखा रहे हैं. I hope all of you are okay with this bond line structure. Is everyone okay? Can I get a yes sir, no sir? Yes Three sir. carbon atoms. What about others? जल्दी बताइए. अन्ना, खदीजा, सिद्दीका, हर्षा. Three carbon atoms. ठीक है. खदीजा, सिद्दीका. Yes, sir. Yes. खदीजा की आवाज ही नहीं आ रही है. Now look at four carbon atoms. How I can draw the four carbon atom? आप पहले चार carbon atom बना लीजिए. This four carbon atom. This is one way of writing four carbons. Another way would be write three carbons, है ना? और फिर क्या कीजिए, मिडिल वाले में एक कार्बन लगा दीजिए. दिस इज आल्सो फोर कार्बन. कैसे ना पीछे में
Yes, sir. मेक सेंस? सो वी हैव टू चेन आइसोमर्स. चेन कितने बन सकते हैं? दो बन सकते हैं. व्हेन यू हैव फोर कार्बन एटम्स वी कैन मेक टू चेन. एक का नाम होता है एन ब्यूटेन. दिस नेम इज एन ब्यूटेन एंड द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज आइसोब्यूटेन. ठीक है. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर और ये बात नहीं कर रहे. चेन में आपको बता रहे हैं ना. ब्यूटेन के बारे में बता दिया हमने. When I have five carbon atoms, then I can make a straight chain. One, I hope you understood the फंडा कैसे करना है. एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन. We have five carbon atoms. ठीक है. अब reduce the length of straight chain to four. One, two, three, four. और एक कार्बन को यहाँ लगा दीजिए. और you add a carbon atom here. Both of these are going to be same. Yes or no? Because these two positions are same. क्या ख्याल है? बोलो तो. Yes, sir. ठीक है. Then we have one more which is going to be this. So in five carbon atoms, I have N-pentane. इसका नाम होता है आइसोपेंटेन. And the name of this molecule it is neopentane. By the way, these are all common names. Neopentane. चलिए इतना ड्रॉ कीजिए. नाउ वी हैव सीन ऑल द चेन्स. अब हर चेन में वी आर गोइंग टू लुक एट पोजीशन. क्या कोई अलग पोजीशन है या फिर नहीं है? हाउ मेनी पोजीशंस आर अवेलेबल? ठीक है. Raise your hand if you're done. Mariam, you have done till here. Yes. Waiting for Mariam. Now, if you look at one carbon atom, तो one carbon में बस एक ही position है. So we are not going to look at the case of one carbon atom for the different positions. If I look at the carbon atom in two carbons, then both the carbon atoms are 1 degree. This is also 1 degree. 1 degree connected to 1 degree. है ना? See, I am making a pattern. उसको थोड़ा recognize करके लिखिए मत अभी. One carbon में तो I hope you all understand that there is only one position, that is the first carbon. In two carbon atoms also we have only one type of carbon. We have two carbon, but both the carbon atoms are same. This is also 1 degree, that is also 1 degree, and they are connected to each other. So 1 degree connected to 1 degree, same thing. इस कार्बन और उस कार्बन में कोई फर्क ही नहीं. There is no difference. But if I look at three carbon atoms, please try to write. Please don't try to write. Try to listen. We have 1 degree, we have 2 degree, and we have 1 degree. You can, with conformity, we can say that this 1 degree and 2 degree carbons are same. Sorry, carbons are different. This 1 degree carbon and this 2 degree carbon, they are different. क्यों? Because that is 1 degree and 2 degree. नाम नहीं है. I hope you can see how it is 1 degree and 2 degree. ऐसा please tell me guys. देखिए खदीजा, मरियम, अन्ना से देखा. 1 degree, 2 Yes, degree तो sir. समझ में आ रहा है ना? Yes. अब देखिए जरा. Yes, sir. So now let us try to understand what about the two 1 degrees. Are they same? Yeah, they are same. Why they are same? Because both the 1 degrees are connected to the same 2 degree. क्या ख्याल है? Both the 1 degree are connected to the same 2 degree. तो कोई फर्क ही नहीं है उसमें. वो भी 1 degree, वो भी 1 degree. ठीक है, that was just same. What is it connected to? It is both of them are connected to the same 2 degree carbon. They are connected to the 2 degree carbon only. क्या हो गया? सब कुछ same. Now let us look at N-butane. तो ध्यान दीजिएगा जरा. We have 1 degree, 2 degree, 2 degree,
and 1 degree. Let us analyze the 1 degree and 1 degree. Both the 1 degrees are connected to 2 degree. है ना? Both the 1 degrees are connected to what? They are connected to 2 degrees. So both of them are same only. क्या ख्याल है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now the 2 degrees, this 2 degree is connected to this 2 degree. So those 2 degree, so they are connected to each other. That much there is no difference. In degree there is no difference. In attachment also there is no difference because both the 2 degrees are attached to either 2 degree and 1 degree. The first 2 degree is attached to 1 degree and it is attached to 2 degree. The second 2 degree is also attached to 2 degree and 1 degree. That is why both the 2 degrees are also same, both the 1 degrees are also same. So at the end we have only two positions. एक 1 degree वाला और एक 2 degree वाला. क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए. तो अब by pattern recognition आप ये कह सकते हैं these are also same. क्या ख्याल है? Yes, sir. For 5 carbon atoms. Again you can say these are same. Yes or no? Yes, sir. And this one is a different one. So here we have 3 different carbon atoms. 3 position. क्या ख्याल है? Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Sir, ये और डाउट आ रहा है? देखो different देखो क्यों हो? देखो डिफरेंस क्या बताते हैं. लग रहा था हमको कुछ ना कुछ तो डाउट आएगा. तो 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री. सर तो पर्पल 2 डिग्री क्यों अलग है? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. बताओ क्यों डिफरेंट है. सोचो तो कनेक्टिविटी देखो. हाउ द ब्लू वन इज डिफरेंट टू द पर्पल वन. ब्लू वाला Because किस किस से है? हाँ बोलो. पर्पल वाला 2 डिग्री से अटैच है बोलते हैं. हाँ और Yeah. ब्लू वाला. Blue वाला 1 बस 2 degree and 1 degree. हाँ. I hope this is clear for everyone. The purple carbon atom is attached to 2 degrees. वो दो ब्लू वाले से अटैच. The blue carbon is attached to a purple carbon and a red carbon. अलग हो गया. अरे आ रहा है बात समझ में नहीं आ रहा? बताएं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जरा. देखिए ये दोनों तो सेम है 1 डिग्री 1 डिग्री. लेकिन हम कहेंगे ये वाला 1 डिग्री डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री तो ये अलग हो जाएगा एंड दिस इज 2 डिग्री तो ये अलग हो जाएगा. कैन यू टेल मी हाउ द ब्लू वन एंड द रेड वन इज डिफरेंट? दिख रहा है सबको? Yes, sir. द ब्लू वन इज अटैच्ड टू अ 3 डिग्री कार्बन एटम. ये तो 3 डिग्री है ना. दिस इज Yes, 3 sir. डिग्री. द पर्पल वन इज 2 डिग्री. 2 degrees. 2. द रेड वन इज 1 डिग्री. 1 degree. Both the blue one is also 1 degree. But the blue one is and red one are different. Why? Because blue वाला attached है 3 डिग्री से, 1 डिग्री. रेड वाला attached है 2 डिग्री से. बात समझ में आ Yes, रही sir. है कि नहीं? चलो Yes, sir. नियोपेंटेन है. बताओ नियोपेंटेन में कितने टाइप ऑफ कार्बन एटम्स है? Two types. करेक्ट, वेरी गुड. 1 degree and 4 degree. 1 डिग्री एंड 4 डिग्री. करेक्ट. 4 डिग्री ऐसा कुछ मतलब इन जनरल नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी हाँ 4 डिग्री क्वार्टर में. ठीक है ना. ऑल द रेड वन इज सेम एंड ब्लू वन तो एक अकेला है. चलिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है. हम लिखाते जा रहे हैं, आप बस लिखते जाइए. ठीक है ना. देखो जब आपके पास 3 कार्बन एटम है, इसमें आपके पास 2 केसेस बन रहे हैं. हाइड्रोजन एटम हियर एंड द हाइड्रोजन एटम हियर. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? एन नॉर्मल प्रोपाइल halide. Instead of halide you can have fluoride, chloride, bromide, iodide. We can call this isopropyl halide. Instead of halide you can have fluoride, chloride, bromide, iodide.
ठीक है, छापो छापो जल्दी छापो, आपते जाओ। Sir, are ISO, NEO, and SEC considered in IUPAC naming? Okay. अरे वो क्या, हम अभी सोच रहे थे भाई, आई वाज जस्ट थिंकिंग अर्जा, आपको क्या लगा, यस या लगा, यस यस लगा, नो लगा? So I thought you said no. नहीं नहीं नहीं, सोच रहे थे एक मिनट। देयर आर सम व्हिच आर कंसीडर्ड, फॉर एग्जांपल आई थिंक सेकेंडरी एंड टर्शरी को किया जाता है कंसीडर, एन एन भी चल जाता है, एन पेंटेन दैट्स फाइन, बट आई थिंक सेकंड ये आइसो नियो को नहीं कंसीडर किया जाता जनरली, बट इट इज स्टिल वेरी वेग यार, स्टिल वेरी वेग। ठीक है, तो जब भी हो ना तो नंबरिंग कर दीजिए, फाइन। Yes. बट व्हाई डू आई टीच नॉर कॉमन कॉमन नेम्स, बताइए जरा अर्चा, फिर हम क्यों पढ़ा रहे कॉमन नेम्स? They're used in questions. जब करें फिर सवाल में आएगा तो सवाल में, लेकिन यही सब आते हैं, कॉमन नेम्स आते हैं, आईयूपैक नेम्स जनरली नहीं आते। तो हो गया, आई थिंक सबका हो गया ना? यस सर। इस बार ज्यादा अच्छे से पढ़ा दिया ना हमने हर्षा, ये वाला। हाँ हर्षा, Sir, इस बार ज्यादा अच्छे से पढ़ा दिया हमने ये वाला आइसोमर्स। हर्षा को इतना टाइम हो गया, अच्छा भूल भी गई होगी। चलिए नहीं, 4 carbon atoms में we have 2 chains, so one case is going to be of N-butane, the other case is going to be of isobutane. In N-butane, we will have 2 different structures. One structure is going to be N-butyl halide, 4 carbon atoms, and then a halogen atom. This will be N-butyl halide. The other case will be of 4 carbon atoms, and the halogen is here. This will be sec butyl halide. In isobutane, we can have 2 different cases. एक तो आपके पास, if you attach the halogen atom here, है ना, और you attach the halogen atom here, है ना, तो ये 1 डिग्री वाले में अगर अटैच करिएगा ना, if you attach it on 1 degree, then it is named as isobutyl halide. Isobutyl halide. But if you attach on this carbon, the 3 degree carbon atom, इसको क्या कहते हैं, थर्ड टर्शरी है ना, 3 डिग्री ना, तो थर्ड ब्यूटाइल halide. डन सर। What about others? बाकी लोग भी हाथ रेस करें, if you're done. Done, sir. प्लीज रेज योर हैंड कहीं, हम भूल जाते किसका डन हुआ नहीं हुआ। अच्छा आपका तो लिखा हुआ है ना, और 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन आइटम का सारा केस बनाइए आप लोग। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग द चेन। एक तो सिंपल आपके पास ये वाला चेन है, 4 कार्बन आइटम्स एंड देन यू हैव 1 कार्बन हियर। ठीक है, और एक चेन है आपके पास ये वाला 4 कार्बन आइटम्स का। ठीक है,
ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस वन। इसका 3 बनेगा जैसे हम लोगों ने देखा था, इसका 4 बनेगा। इसका कितना बनेगा देखिए जरा। नो नीड टू राइट द नेम, आराम से कीजिए सवाल को। बट होना चाहिए यार सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। चलिए फॉर योर हेल्प ना हम दिखा देते दैट ये ब्लू कार्बन में से किसी एक में भी लगा दीजिएगा, इस रेड में से किसी एक में लगा दीजिएगा, और इस पर्पल में से किसी एक में लगा दीजिएगा। सिमिलरली यू कैन, एक पर्पल में लगाइएगा, एक ग्रीन में लगाइएगा, एक रेड में लगाइएगा, ठीक है, और ब्लू में से किसी एक में लगा दीजिएगा। यू हैव टू अटैच हाइड्रोजन आटम। ऑल द ब्लू कार्बन आटम्स आर सेम, और एक और अलग है यहाँ पे, दैट इज द रेड कार्बन आटम। होपफुली अब आपके पास आसान हो जाएगा। Please send your answers on my WhatsApp once you are done. मरीन पहले में 3 ना बनेगा, सेकंड वाले में 4 बनेगा। Yes. यस सर क्या? फ्रॉम दी Oh, फर्स्ट वन यहाँ पे 3 बनेगा ना, सेकंड वाले में 4 बनेगा। रेड वाले में तो आपने बनाया नहीं, द सेकंड केस। यू नीड टू सर्कल देम भाई, ऐसा अलग अलग आपको करना पड़ेगा, ये वन वन सेम है। और थर्ड वाले में एक गलती है, देखिए क्या गलती है। एक तो सही है, एक गलत है, क्या गलत है देखिए। ये भैया क्या हो गया?
प्लीज सेंड योर आंसर्स गाइस। मरियम आप ठीक कीजिए जो आपने भेजा है उसको। Sir, in the third one, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है बताइए, क्या मिस्टेक है? you said one was wrong. हाँ तो बताइए ना क्या मिस्टेक है, कौन सा गलत है यार? इतना लेट लगेगा यार आप लोग को बनाने में, बताओ। तीन इसका हो गया। तीन now here you will have only one, that is here, because if you add the halogen atom on the red carbon atom, then it will make 5 bond, or 5 bond possible है for carbon atom. ठीक है, so this is neopentyl halide, neopentyl halide, और ये वाला जो है कार्बन एटम नहीं, this carbon atom, this is known as isopentyl halide. ठीक है, चलिए कॉपी दिस डाउन। आई थॉट भेज दीजिएगा भाई, इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। सिद्दीका अन्नपूर्णा आप लोग को नहीं आया मतलब ना? सिद्दीका अन्नपूर्णा एंड खदीजा। I got confused there. नहीं I क्यों got कंफ्यूजन हो confused with भाई? them. नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज होने की बात तो फिर आप पूछिएगा ना। Yes, sir. यस सर, मतलब क्या है यार, हम जब बोल रहे हैं हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ तो बोलिए सर, नहीं हो रहा हमसे। आप लोग बैठे रहते मास्टर कर देगा, तो हम ही करते रहेंगे, फिर आप लोग को कुछ नहीं आएगा। अन्ना व्हाट अबाउट यू? अन्ना, अन्ना तो जवाब ही नहीं दे रही। अन्ना व्हाट अबाउट यू, टेल मी। कुछ जवाब नहीं। खदीजा, I didn't understand it, sir. जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, व्हाट डिड यू से खदीजा? I didn't understand it. ये कौन बताएगा हमको? हम जब आपसे आपका नाम लेके पूछें तब आप बताइएगा खदीजा। हाँ खदीजा, यू विल ओनली टेल मी व्हेन आई आस्क योर नेम स्पेसिफिकली। यस और नो तो बोल सकते हैं अभी, कैन यू टेल मी? तो फिर हम आपसे हमेशा पूछ लिया करेंगे। Yes, sir. यस, यू विल ओनली टेल मी दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हेन आई विल आस्क यू स्पेसिफिकली। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना खदीजा? Oh no, नो तो फिर I just देखिए, बड़ा मुश्किल होता है 2 बार समझाना, और वो भी आप जो बोलते ही नहीं है कुछ। और जब व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, क्या बोले यार, इतना आधा आप स्टार्टिंग वाली क्लास आ रहे, 1 2 3 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वें चैप्टर में भी आप नहीं बोलिएगा करिए तो कैसे काम चलेगा? मतलब एक तो टीचर होता है जो बोलने पे आपको मना कर दे। हमको तो गुस्सा आता है जब बच्चे नहीं बोलते हैं। कुछ तो बोलो यार। तो सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, थोड़ा स्लो कर लीजिए इसको। सर हम तो बोलते हैं कि आप बोलिए, फिर आंसर बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या नहीं लग रहा। थिंक,
I just want you guys to think about it. क्या ही बोला जाए, छापिए अब इसको, क्या बोले हम इसमें। अब द थिंग इज दैट आई हैव रिटन इट। अब या तो बाद में समझिएगा इसको, एक दो दिन के बाद, वंस यू नो द आंसर। पता नहीं आपका दिमाग जो है वो समझ रहा है चीजों को, या फिर जो याद है बस वही बता रहा है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वंस यू नो द आंसर। कई दफा इफ यू नो द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे तैसे करके आप उसका आंसर ले आइएगा, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। तो जैसे जब चीजें एंड तक पहुंच जाए ना, उसके बाद कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया, उसका मतलब हम दोबारा समझा भी देंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो एक दो दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर हमको याद दिलाएगा, फिर हम बता देंगे। ठीक है खदीजा, बट यू हैव टू रिमाइंड मी यार। ठीक है, तो देखते हैं आप Yes, sir. रिमाइंड कर पाते हैं कि नहीं। हमको तो याद रहेगा, लेकिन बट आई वांट टू सी वेदर यू विल रिमाइंड मी और नॉट। रेज योर हैंड इफ यू डन। So when writing isomers, we don't consider cyclic compounds. नो, बिकॉज फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना हर्षा। साइक्लिक कंपाउंड्स यू नीड टू कार्बन लेस। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए 5 कार्बन आइटम है, कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे टेल मी और 5 कार्बन आइटम्स। 10. और जब ओपन चेन है तो कितने चाहिए? 12. है ना, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, तो दीज आर नॉट गोइंग टू बी आइसोमर। हाँ, साइक्लिक साइक्लिक में ही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 कार्बन आइटम, 3 कार्बन आइटम और 1 कार्बन ऐसा। अगर 5 कार्बन आइटम को देखा तो 5 कार्बन आइटम का यू कैन हैव वन दिस आइसोमर एंड दिस, मतलब इस तरह से आइसोमर बन जाएगा। बट इतना इसमें नहीं है, मतलब ऐसे आइसोमर से इफ आई टेक एज अ डिफरेंट टॉपिक जो डिस्कस जी और नीट में कराया जाता है आइसोमर अलग से, उसमें तो फिर उस चीज को कंसिडर किया जाता है, बट नॉट राइट नाउ, है ना। Okay. यहाँ पे दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में। आपको ना ये सारे प्रोडक्ट बनने वाले सेम चीज नेक्स्ट क्लास में। इन वेडनेसडे यू आर गोइंग टू राइट द सेम स्ट्रक्चर बट रिएक्शन में। तो ये नहीं आ रहा सही से तो वहां भी नहीं आएगा फिर। क्यों आप चुप रह जाते हैं कि नहीं समझ में आ रहा तो फिर बोलना चाहिए। सवाल दो तब नहीं आ रहा है, पहले ही एक दो सवाल में ही बता दिया कीजिए भाई कि आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सारा आंसर कर लें उसके बाद बोल रहे कि नहीं सर हमको तो नहीं आया था। इनिशियल की ही सवालों में आपको क्या करना है बता देना। चलिए प्लीज राइट प्रिपरेशन ऑफ एलो एल्केन। नंबर ए, फ्रॉम alcohol. Alcohol से we are going to look at various different methods. So please keep writing, don't worry, है ना। पहला है using phosphorus based reagent. Using phosphorus based reagent. In this, the starting material will be alcohol, the end material will be haloalkane, because we are learning method of preparation of haloalkane, so the product is always going to be haloalkane. The starting material, we are going to use different starting material. The starting material in this case it is alcohol. So when we have alcohol ROH, there are various methods of preparation using phosphorus based reagent. For example, you can use PCl3. So what will happen? Please try to listen to me and repeat it when I say OH will be replaced by bolo, OH will be replaced by Cl3. Cl, only Cl, chlorine. Cl3 नहीं आएगा, OH को रिप्लेस करके कौन आएगा? Cl आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यार, इन चीजों का बहुत छोटी छोटी चीजें हैं।
Now tell me what will happen if I have PBr3. OH will be replaced by, बोलो यार, मरियम, BR. खदीजा, सिद्दीका। BR. भाई आप लोग माइक ऑन करके बोलते क्यों नहीं है? सिद्दीका, खदीजा, फिर बोलिएगा आ नहीं रहा है। माइक ऑन रहना चाहिए। खदीजा कीप योर माइक ऑन, सिद्दीका कीप योर माइक ऑन। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक, भाई नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स नहीं है यहाँ पे कि आपने फॉर्मूला लगाया न्यूमेरिकल्स आ गया। यू हैव टू कीप ऑन सेइंग, फिर याद हो जाएंगे चीज। टेल मी OH विल बी रिप्लेस्ड बाय BR. खदीजा एंड सिद्दीका। आपके दिमाग में नहीं आ रहा है ये चीज दिया? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। हम जब ये कहें कि आपका नाम क्या है, खदीजा, उस स्पीड से आना चाहिए। खदीजा एंड सिद्दीका, इट्स नॉट कमिंग इन दैट स्पीड, राइट? Yes, sir. ठीक है। अब देखिएगा, कैन यू आइडेंटिफाई हैलोजन? Yes. Yes. कौन कौन सा हैलोजन है बताइएगा इसमें? इज वन हैलोजन? ये सर नो। खदीजा एंड सिद्दीका आपके No, पास sir. फर्स्ट वन हैलोजन है? No. No. नहीं है। सेकंड वाला? No. नो। No. थर्ड वाला? No. नो। फोर्थ वन? Yes. Yes. फिफ्थ वन? Yes. Yes. सिद्दीका आपसे इंतजार कर रही है। खदीजा यस बोलेंगे तो आप अभी बोलिएगा। फिफ्थ वन। सिक्स वन सिद्दीका बताइए। Yes. सेवेंथ वाला बताइए सिद्दीका। No. पहला वाला नहीं है हैलोजन, फ्लोरीन। हाँ खदीजा एंड सिद्दीका। Yes. फिर भाई तो पढ़िए यार, आप लोग कल लास्ट क्लास में तो यही तो कराया था। हैलोजन से ही तो स्टार्ट कराया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हैलोजन। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग हैलोजन, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग हैलो एल्केन, तो आर पे क्या अटैच होगा? हैलोजन ना। फिर टेल मी OH विल बी रिप्लेस्ड sir. बाय, OH विल बी रिप्लेस्ड Br. बाय, Yeah. आप ही तो आंसर कीजिएगा। OH विल बी रिप्लेस्ड बाय, Cl. देखिए इन दिस केस वी यूज रेड फास्फोरस और साथ में कोई हैलोजन। दिस हैलोजन विल बी आइदर ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो RX आई विल बी राइटिंग हियर, X विल बी Bromine or iodine. ब्रोमीन और आयोडीन। Pocket is down. Raise your hand if you're done. प्लीज स्पीक। हम बहुत, मतलब हम क्या बताया, बहुत परेशान होकर हम बोल रहे हैं आप लोगों को। खदीजा सिद्दीका, अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में हम नहीं बोलते थे, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में आप खुद से भी अगर कीजिएगा ना तब हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इन द क्लास, इट विल बी हेडेक, आपको चीजें नहीं याद रहेंगी। ठीक है, मतलब नाराजगी से ज्यादा संजीदगी के साथ हम बोल रहे हैं इस चीज को, है ना? मतलब गुस्से से ज्यादा नाराजगी के साथ बोल रहे हैं, समझ लीजिए आप लोगों ने। इनऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, देन you have to be 100% sure in the class itself. Try to gain 100% in the class, फिर उसके बाद तो फिर रिपीट करना है बस आपको, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा से बहुत ज्यादा सवाल भी हम नहीं देंगे। जो मतलब जितना कुछ है ना वो आपके क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज क्लास में ही 100% जो कराया जाए सीख के खत्म कीजिए इसको। और उसके बाद रिवाइज करना पड़ेगा आपको। रिविजन के टाइम में समझने बैठिएगा, यू डोंट हैव दैट। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सवाल, हर एक सवाल नया हो सकता है, कैलकुलेशन उसमें अलग हो सकती है। द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्लीज स्पीक। अभी से हम आपको बोल रहे हैं, खदीजा एंड सिद्दीका, आप ही लोग बहुत कम बोलती हैं। एक अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा को भी जब बोलो कभी बोलती है कभी नहीं बोलती, ऐसे चुपचाप बैठ जाती है। ठीक है, प्लीज स्पीक जाइए। ऐसा नहीं कि Yes, मतलब sir.
बोलने से आ ही जाएगा आपको, एक बात ये भी बता दे रहा है, ऐसा नहीं कि बोलने से आ ही जाएगा, नहीं बोलिएगा तो पक्का नहीं आएगा, ये तो समझ लीजिए। जैसे 11th 12th में मेहनत के बावजूद भी बच्चों के मार्क्स नहीं आते ना, मेहनत नहीं करे तो मार्क्स नहीं ही आएगा। मेक सेंस, ये सुनो, 11th क्लास में मेहनत करने के बावजूद भी नंबर नहीं आते बहुत बच्चों को, तो जो मेहनत नहीं करेगा उसको तो नंबर नहीं ही आने। वही हाल होगा, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक देन यू हैव अ चांस टू अंडरस्टैंड, यू डोंट स्पीक, आपको चांस भी नहीं रहता। वेटिंग फॉर अन्ना खदीजा, रेज योर हैंड इफ यू आर डन राइटिंग। देखिए दिस इज तो फ्रेमवर्क, सवाल कैसे आएगा, रिएक्शन कैसे करना है, उसके लिए हम बताएंगे, यू हैव अगेन टर्न योर माइक ऑन। अन्ना जस्ट वेटिंग फॉर यू। Rest all of you guys can lower your hand. Anna, I'm just waiting for you. Anna, are you there in the class? Anna? Anna, are you there in the class? Anna, let me know if you're not done. Hey, Anna, any class? Here, guys. ठीक है? How to write the product? Repeat after me. Make everything as it is without OH. बोलिए make everything as it is. Repeat after me, guys. Make ये everything ये खदीजा, as खदीजा आपका माइक अभी भी ऑन नहीं है यार, हम क्या करें आपके साथ? इतना बोलने के बावजूद भी बच्चों का अगर आप मतलब सीरियसली क्या करें आदमी? Make everything as it is Make make everything as everything it as is it is as it is without OH, without without OH. 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 है ना? तो ये ऐसे हो गया, और OH की जगह क्या लग जाएगा पता है, बताओ? Cl. Cl. सिर्फ Cl3 वगैरह मत लिख दीजिएगा यार, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए, एक बार खत्म करना है फिर इसको एक बार में, ठीक है? Yes. फिर क्या करेंगे बताओ? हाउ टू Make राइट द प्रोडक्ट? everything as it is without OH. मेक, देखिए एकदम बिल्कुल एज इट इज का मतलब एज इट इज, ऐसा नहीं कि सर अच्छा सर वहां तो OH था ना तो हमने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है, OH नहीं लिखने कहा था ना आपने सर, तो हमने इसको नहीं लिखा, नहीं, मेक एवरीथिंग एज इट इज, सिर्फ OH नहीं रहना चाहिए। अब बताइए, दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट, जो कि आपका क्वेश्चन में ही है, बात समझ में आ रही है? ये फ्रैगमेंट, दिस फ्रैगमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन ना, तो कॉपी करना, पहली Yes, चीज तो sir. ये है। अगर इस कॉपी करने में आप मिस्टेक कर रहे हैं तब तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, होती है मिस्टेक, बच्चों से ही होती है मिस्टेक, ठीक है? अब बताइए OH की जगह क्या आ जाएगा? Br. 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 बताइए क्या करेंगे? Make everything as it Draw. is without Make OH. everything as it is. हो गया मेक एवरीथिंग एज इट इज विदाउट OH, हो गया? No. अच्छा बाकी है। No, No. sir. No. हाँ, अब हो गया? Yeah. No, sir. Yes, sir. अभी भी नहीं हुआ, मेक Yes, एवरीथिंग sir. एज इट इज विदाउट OH, Oh, ये या? नहीं कंप्लीट पूरा नहीं हुआ। Yes. हाँ कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ अभी क्या बाकी है बस बताओ? CL. 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 चलिए, कीजिए इसको, फोर्थ वाला आपको करना है, फिफ्थ वाला भी आपको करना है। अन्ना पढ़ना ये है कहाँ चीज है अन्ना? अन्ना, if your mic is not working, please let me know in the chat. If you have already sent the chat, please check if you have sent it to Salim or not.
सर कंप्लीट करके आपको आंसर्स भेजने का है सर, ओके? हाँ, you have to send the complete answer for the fourth and fifth one. Very good, yeah. Mariam, very good, correct. Yes, Siddika, very good, correct. Khadija, what is the mistake in fourth one? Yes, sir. What is the mistake in fourth one? There is a mistake in fourth one. Can you identify the mistake? I did for red phosphorus. What, Khadija? Red phosphorus. Red phosphorus? क्या? We can't hear you, Khadija, properly. I wrote iodine. I wrote I2. हाँ, it should be what? I2 नहीं होके क्या होना चाहिए? हाँ, I. very good. ठीक है, चलो. बाकी लोगों ने नहीं भेजा अभी तक. हम सबने भेज दिया ना. अन्नपूर्णा तो है नहीं क्लास में. सिद्दीका, मरियम, यहिया एंड खदीजा इज डन. ठीक है, चलिए. अन्ना क्या हो गया भाई? आपको नाराज हो गई क्या आप यार? हम भाई आपके भले के लिए बोलते हैं. जब कुछ थोड़ा गुस्सा हो जाए ना. देखो असर दिखा. जरूर, चलिए. सही किया ना हमने. हाँ, चलिए. राइट, नेक्स्ट. यूजिंग थायोनिल क्लोराइड. दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल ओनली, है ना? यूजिंग थायोनिल क्लोराइड.
This is quite important. Okay, please write it down. When alcohols are treated with ethyl chloride, SOCl2, they form alkyl chloride, HCl, and SO2. In this case, the byproduct जो extra मिल रहा है ना हमको वो भी important है. For example, we have ROH. General reaction इसका कैसे होगा? ROH plus SOCl2 is going to give you guys RCl plus HCl plus SO2. ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? दिस HCl and SO2 जो है ना, both of these are gases. Now, since both of these are gases, then what's going to happen? They will escape out of the beaker. You will be only left with RCl. You will be only left with RCl. And if you are only left with RCl, then you don't have to do any purification or separation. Okay. So if in a beaker you have more than one product, then you have to separate the products. Fine. Why do we need to separate the product? Because I need alkyl chloride. तो alkyl chloride के लिए तो हमको alkyl chloride ही चाहिए. तो उसमें दो तीन चीजें और रहेंगी. Then how can I further use alkyl? So I have to separate the alkyl. It is always preferable that we don't have any mixture of products. If I get only one product, that is better. If I have mixture of products, फिर उसको separate करना पड़ेगा, then purify करना पड़ेगा. Fine. So that's what we don't need. That is why this is a preferred method. We will write that also. For example, if I have something like this, and in the reagent they have given like this SOCl2, ठीक है? तो फिर क्या करना है आपको? Make everything as it is, and OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा. ठीक है? Plus obviously you will be having HCl and SO2. You can write that. Fine here. सवाल को फॉर्म में लिख लीजिए, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा. Why thionyl chloride mm, with alcohol, ethyl chloride with alcohol is a preferred MOP, the preparation of alkyl halide. Answer is because the byproduct HCl and SO2 are escapable gases, and we get pure alkyl halide. Hence, there is no need of purification.
Raise your hand if you're done. चलिए, third लिखिएगा. In this, see, the reaction is similar. Fine. Everything as it is. Instead of OH, right here. इसमें ज्यादा फर्क नहीं है. अगर it's important because of this question what we have done. अगर लिखिएगा third case. Third one is using halo acids. Okay, this is also pretty important. Now, what is halo acid? It is HX. Okay. So in general, if you react ROH plus HX, it is going to give you RX plus H2. Fine, निकल जाएगा बाहर. Fine. So if you look at the reactivity, for example कर लें क्या? For example, लेकिन reactivity देखिए जिसके बाद we can do example reactivity of different halogens. Sorry, different halo acids. For example, if I talk about HF, HCl, HBr, and HI. So here the weakest bond is of HI because iodine is a very large atom, hydrogen is small atom, तो आसानी से टूट जाता है. So if it आसानी से ये टूट जाता है, that means it is what? Easily very reactive, आसानी से टूट जाएगा. तो this is most reactive followed by HBr and followed by HCl. HF तो react नहीं करता, इतना सुना है कि वो react नहीं करता because the bond of HF is very strong. ठीक है. तो HI यहाँ पे क्या है? Fastest. HCl यहाँ पे क्या है? HCl is what it is? What I can say slowest. So that is why we used a catalyst that is known as anhydrous ZnCl2. Now the case of HCl is important because please write treatment of alcohols with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 gives alkyl chloride. It gives alkyl chloride. Okay. Now this reagent that is HCl plus anhydrous ZnCl2. Yeah, tell me. Could you scroll up a bit? You just give me this. Is also known as Lucas reagent. See, the case of HCl, why it is important? We have to पता चल जाए. Please write this much. Raise your hand if you're done. This is also known as Lucas reagent. And what is Lucas reagent used for? We are going to just see. This whole thing, HCl plus anhydrous ZnCl2, this whole thing is known as Lucas reagent. Correct. Now what happens? Please see. What is Lucas reagent used for? Lucas reagent is used for distinction between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols.
कैसे, देखिए ध्यान से, इफ आई यूज 1 डिग्री अल्कोहल and 8 degree alcohol, if I add Lucas reagent, then no reaction, there will be no reaction at room temperature. In room temperature तो कोई reaction होगा ही नहीं, but it will give white PPT या turbidity. So white PPT, तो बेसिकली turbidity इसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ठीक है, turbidity जनरली लिखा रहेगा आपको, but what is turbidity? When you have chalk powder and you mix the chalk powder, the solution, whatever the color of solution or how the solution looks, that is known as turbidity. ठीक है, तो क्या बोलते हैं turbidity, and turbidity is because of this RCl, alkyl chloride, on heating. But when you heat it, then it gets turbidity. If you have 2 degree alcohol and you use Lucas reagent, then it will give you white PPT, that is RCl, but it is going to give you after 5-10 minutes. 5-10 मिनट से ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगा ना, विल गेट इट इन रूम टेम्परेचर. But if you have 3 degree alcohol and we use Lucas reagent, then you get white PPT instantly. So if I talk about the reactivity of alcohol, then 1 degree is slowest, followed by 2 degree, and followed by 3 degree. 3 degree is fastest in reaction with what Lucas reagent. Write this down, raise your hand if you're done. चलिए, गिविंग सम क्वेश्चन. आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना उसके ऊपर है. इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एवरीथिंग एज इट इज. इंस्टेड ऑफ OH you have to attach the halogen, and reaction को देख के, reagent को देख के you can identify what the halogen is, है ना, hopefully. आपको और कुछ नहीं लिखना है, you just need to write the organic product. बाकी बाई प्रोडक्ट्स आपको नहीं लिखने हैं. Yes, 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 yes.
Send your answers on WhatsApp. Yes, very good, Yahya. Correct. You can leave the class and do the assessment. Assessment मिला होगा एक आपको. Okay, sir. Thank you very much. Bye bye. Take care. Thank you. Mariam, looking at your answer. First one is fine. Second one is fine. Third one is fine. Fourth one is also fine. Fifth one is also fine. Thank you very much. You can do the assessment now. Okay, Mariam? Okay, sir. Thank you. Hmm.